Let's see the violence against women. Violence refers to the act that cause physical and the mental harm to the victims. Okay, that means violence means anything that harm physically or mentally. That means anything that cause you either physically or mentally. That is called violence. In India, there are several cases of the violence against women within the household or also elsewhere. That means in India we can find that women is subjected to violence, physical violence, mental violence in the home, plus certain workplaces or elsewhere wherever she goes. Okay, let's see the violence. The type of violence against women are, see, women, well, violence against women can be classified into three groups. That is, first is a criminal violence. That is, whatever criminal violence that happens to women, that is subdivided into rape and molestation, adaptation and murder. Okay, trafficking of women, bride burning, sale or auction of women, torturing of women. Okay, that means criminal. This is all criminal. That means women are subjected to rape and molestation. कभी कभी उनका मर्डर भी कर देते हैं. और ट्रैफिकिंग, दैट मीन्स विमेन को किडनैप करके एक प्लेस से दूसरी जगह पे सोल्ड किया जाता है. देन दिस इज ब्राइड बर्निंग फॉर द डाउरी. women can be sale of auction, that means a sale of women. टॉर्चरिंग ऑफ women that may lead to the suicide. That means कि इतने हद तक उसको टॉर्चर किया जाता है that is she commit a suicide. Okay, this is all come under the criminal violence. Next is the domestic violence. Domestic means in home. Okay, होम, घर के अंदर उसके ऊपर जो वायलेंस होते हैं, that is dowry harassment. That means she must be harassed कि उसने dowry नहीं लेके आई है. Sexually abused by the family members. That means कि उसके ऊपर कोई कमेंट करना या उसको बैड वर्ड्स देना. That is all come under the sexual abuse. Maltreatment of the women. That means कि उसके साथ अच्छे से behave नहीं करना. Malnourishment, not giving the proper food to eat. Verbal abuse of the women by the family members. Again same way, ill treatment करना, उसके साथ bad behave करना. Isolation of the family, females with the household. That means all the household work जो भी है, घर के जितने भी काम होते हैं, it's given only to the female members of the society. Denial of the sharing the property. That means कि उसका कोई भी property में share नहीं है. That means जितनी भी property right है, that only goes to the male child. Third type is the social violence, which include eve teasing and the lead comment. That means कि जब रास्ते पे लड़की जा रही है तो उसको comments कर रहे हैं. Okay, forcing a young widow to commit a suicide. That means कि young widow है, उसका husband expire हो गया तो उसको force करे, even though the sati system है abolish, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये सारे इसके ऊपर harassment हो रहे. Oppression of the widows. That means widows को हर चीज में oppose कर रहे. That means widows के साथ सही तरीके से behave नहीं हो रहा है. That is the sexual harassment at the workplace. See, women is harassed not only at the home but at the workplace. Workplace में भी जो उसके seniors है या उसके जो boss है या उसके जो colleagues है उसको sexually comment कर रहे हैं, उसके ऊपर comment कर रहे हैं या उसको sexually harass कर रहे हैं. Sexually abuse in the public transport and other places. That means कि women maybe know this, my girls who are attending the lecture, the public transport पे जब आप travel करते हो तो there are people जो unnecessary touching, okay, या फिर comment. This all fall witness in the court against women. अगर women कुछ करना चाहती है तो उसके खिलाफ false witnesses खड़ा कर देते women's के. These are the all that types of violence that against women. That is again that violence is divided into three parts. That first one is a criminal violence. Okay, that means criminally this is all this court में उसको लेके जा सकते हैं. जैसे for example rape होता है, molestation होता है. Okay, and then trafficking. ट्रैफिकिंग मतलब किडनैप करके दूसरी कंट्री में बेच दिया जाता है. घर में जो वायलेंस होता है दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस. और सोशली जब वो बाहर जाती है वर्क प्लेस पे या कहीं ट्रांसपोर्ट करती है तो ये सारी चीजें जब होती है दैट इज कॉल्ड द सोशल वायलेंस. दैट मींस शी इज subjected to all the three types of violence: criminal violences, domestic violences and the social violences. So you will get a question. That is, for example, dowry harassment can come under which type of violence? So dowry harassment will come under the domestic violence. You will get a rape come under the criminal violence. Okay. For eve teasing is come under the social violence. Okay, so you have to be careful about कि कौन सा category में कौन सी domestic violences, social violences and the criminal violences. Let's see. Person responsible for the violence. Okay, who are this person who are responsible for the violences?
Okay, you can see the second line. According to one study, 60% of the women are abused by their own family members and 40% by the stranger. Okay, ये डेटा आपको कुछ अजीब लग रहा होगा कि जो विमेन्स के ऊपर जो वायलेंसेस होते हैं उसमें 60-40 का रेशियो है, that is 60% from their own family member, okay, and 40% from other strangers. The family member include the parents and the other relatives and the in-laws. Okay, सी हम लोग वी आर इन वेरी गुड कैपेसिटी कि हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, ओके, हमारे रिलेटिव बहुत अच्छे हैं, ओके, बट देयर आर विमेन इन आवर कंट्री जिनको उनके खुद के पेरेंट्स जो है अब्यूज करते हैं या उनके अदर रिलेटिव जो है वो करते हैं, और कभी कभी आफ्टर मैरिज उनके इन लॉज भी जो है उनके साथ करते हैं. फॉर इंस्टेंस देयर आर केसेस ऑफ रेप बाय द विक्टिम्स ओन फादर or other member of the family, or okay, that means other male member of the family. This line is really irritating कि देखो खुद own father, that means women is subjected to rape by own father. Just imagine कि वो women की position क्या होगी या उसकी family members. Okay, according to जो census है data है उसके हिसाब से भी यही है कि maximum जो rape होते हैं वो family में ही हो, family के लोग ही मतलब male members के through ही होते हैं. Okay, so this is very irritating fact. Okay, next is abuse, the types of victimization. Okay, now let's see कि कैसा होता है टाइप ऑफ विक्टिमाइजर, किस तरह से विमेन्स जो है विक्टिमाइज हो जाती है. द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ विमेन. टाइप ऑफ विक्टिमाइजर और वुमेन: person having the personality disorder or the psychopath, those who are suffering from the depression and the inferiority complex, person addicted to the alcohol and other vices. Okay, that means क्या होता है कि women's के साथ जो issues होते हैं, आइदर उसके साथ फिजिकल वायलेंस होता है या उसके साथ मेंटल टॉर्चर होता है या जो भी उसके साथ होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि विमेन इज अ प्योर नेचुरल, वो प्रकृति है. दैट मीन्स कि अगर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो देयर विल बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाती है उसको. समटाइम वो डिप्रेशन में चली जाती है, समटाइम वो अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देती है. ओके, दोज लैकिंग रिसोर्सेस एंड स्किल एंड अदर दोज हु आर sociopath. See, some people जो है वो mentally इतने strong नहीं होते. Some people cannot take all these. So some women can commit suicide also. Person who are possessive, suspicious and dominant in nature. Okay, those facing stressful situation in the family. Okay, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का husband जो है वो बहुत पॉजिटिव होता है, किसी का हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को मारता है भी है, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो है ये सारी चीजें उसको होती है. विक्टिमाइज ऑफ द चाइल्डहुड वायलेंस. कभी कभी कुछ वीमेन्स ऐसे भी होते हैं जिनको चाइल्डहुड से, बचपन से ही जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है. ऐसे हमारी कंट्री में आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है बिटवीन द मेल चाइल्ड एंड द फीमेल चाइल्ड. फीमेल चाइल्ड को कम दिया जाता है, मेल चाइल्ड को हर चीज ज्यादा दी जाती है. इधर इट इज फूड, खाना हो, कपड़ा हो, ओके, एजुकेशन ऑल्सो. मेल चाइल्ड को जो है वो अच्छी स्कूल्स में मिला जाता है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है. एंड अगर अच्छी फैमिली की भी हम लोग बात करें, रिच फैमिलीज की भी बात करें, तो अगर मेल चाइल्ड जो है इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है तो फीमेल चाइल्ड को नेशनल स्कूल में डाल दिया जाता है. ओके, दिस आर द ऑल थिंग्स विक्टिमाइज द विमेन. ओके, नाउ क्या होता है कॉजेज ऑफ द वायलेंस. कॉजेज क्या रीजन है कि विमेन्स के ऊपर जो है वो होता है, कॉजेज क्या क्या रीजन है. ओके, फर्स्ट इज अ मनी रिलेटेड कॉज. ओके, पहला जो कॉज है जिसकी वजह से विमेन के ऊपर सारी फिजिकल वायलेंस होता है या मेंटल वायलेंस होता है, उसके मेन क्या कॉजेस है, क्यों होता है. पहला है violence may be caused on account of money matter. For instance, women may harassed for the dowry by the husband or the law. Women को harass किया जाता है because she has not brought the dowry. उसने अपने साथ जो है वो दहेज, जो हिंदी में that is called दहेज नहीं लाया, तो उसका हस्बैंड या उसके लॉज जो है वो उसको टॉर्चर करते हैं. The violence may also due to the non-compliance of the unreasonable demand for the money from the working wife for gambling, drinking, liquor, etc. See, sometimes it's happened कि वर्किंग वीमेन है, ओके, वो अपना खुद से ही अपना काम कर रही है, शी इज वेरी मच इंडिपेंडेंट, तो उसका हस्बैंड जो है उसकी सैलरी मांग रहा है बिकॉज वो उसको गैम्बलिंग करने की, उसको जुआ खेलने की या उसको ड्रिंकिंग करने की आदत है. ओके, नेक्स्ट इज द पर्सनैलिटी ट्रेट. द पर्सनैलिटी ट्रेट में भी कंपेल अ पर्सन टू इंडल्ज इन द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. सी, सम पीपल जो है वो सस्पिशियस नेचर के होते हैं. सम पीपल आर पॉजिटिव, सम पीपल आर ओवर पॉजिटिव, पैशनेट होते हैं, जेलस होते हैं. ओके, see, I know my voice is very good, but I'm not talking about the whole. Okay, whole male के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, but there are certain kinds of
मेल इन आवर कंट्री जो जेलस होते हैं जब उनकी वाइफ जो होती है वो उनसे अच्छा काम करती है। ओके, अगर ऐसा लगता है कि वाइफ बॉस है या वाइफ हायर पोजीशन के ऊपर है, या जो मेल है उनको किसी को रिपोर्ट करना है जो उनकी बॉस फीमेल है, तो वो टाइम पे वो जेलस हो जाते हैं। ओके, वो जेलस हो जाते हैं और कभी कभी वो सारा जो उनका जो गुस्सा होता है वो जो है वो अपनी वाइफ पे आके उतारते हैं। ओके, दैट मीन्स कि वाइफ को मारते हैं या वाइफ को अब्यूज करते हैं या उसको बैड वर्ड्स देते हैं, या कुछ हस्बैंड्स जो है वो अपनी वाइफ पे शक करते हैं। Okay, that means all this reason है personality. Then third point is victimized pre-repeated violence, that it, at times of women are to be blamed for the cause of violence. The indecent behavior of the victim may result in the violence. कभी कभी families में अगर कोई problem हो रही है, okay, दे में भी family जाए, कभी कभी कुछ problem होती है, तो उसके लिए भी women को responsible ठहराया जाता है. For example, see if the woman is working, अगर वो वर्क कर रही है तो साइमल्टेनियसली अपना घर भी संभाल रही है, बट अगर फैमिली में कुछ इश्यू हो गया तो उसको बोला जाता है बिकॉज शी इज वर्किंग, वो फैमिली को निग्लेक्ट कर रही है। तो कोई भी चीज फैमिली में होती है उसके लिए विमेन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेसफुल सिचुएशन। नाउ व्हाट इज स्ट्रेसफुल सिचुएशन? स्ट्रेसफुल सिचुएशन जहाँ पे विमेन को स्ट्रेस हो रहा है, आई एम मेकिंग द स्क्रीन बिगर ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, stressful situation में देखो, violence against women can be placed on account of the stressful family situation. For example, the children may not behave properly and even bring disgrace to the family. See, अगर बच्चा जो है अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, अगर वो फेल हो जा रहा है, तो पीपल आर नॉट ब्लेमिंग द फादर, पीपल आर ब्लेमिंग द मदर। ओके, इवन दो बोथ फादर एंड मदर प्लेज इक्वल रोल, बट ऐसा बोला जाता है यार इसकी माँ ने इसको यही सिखाया है, इसकी माँ है घर पे नहीं रहती है, इसकी माँ जॉब पे जाती है। ओके, दैट मीन्स कि फादर को स्ट्रेस नहीं किया जाता है, ऑल द फॉल्ट जो है वो विमेन्स पे डाली जाती है, बिकॉज विमेन जो है इसकी माँ इस पे ध्यान नहीं देती है, इसलिए इसका बच्चा ऐसा हो गया। दैट मीन्स कि हर सिचुएशन के लिए जो है फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है। नेक्स्ट, द मेल डोमिनेंट सोसाइटी। स्टिल इंडिया इज अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जहां में मेल को प्रेफरेंस दिया जाता है हर चीज में। जैसे मैंने अभी आपको बोला, स्मॉल थिंग लाइक फूड और अ बिग थिंग लाइक अ रिलीजियस एक्टिविटी। रिलीजियस एक्टिविटी भी हमारे फैमिली में कोई हो तो वहां पे मेल्स खड़े होते हैं रेदर देन द फीमेल्स। ओके, there are a number of the cases where women may be abused and assaulted by the males to show their dominance. They may try to prove that they are always right and the females tries to correct them. अगर फैमिली में कोई मेजर डिसीजन देना होता है तो भी फैमिली में फीमेल को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। जो भी डिसीजन होते हैं, एंड सपोज अगर फीमेल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना भी चाहती है तो उसको डांट के चुप करा दिया जाता है। ओके, देन देयर इज एडिक्शन इंटॉक्सिकेशन। एडिक्शन मतलब कोई चीज का एडिक्शन। ओके, कोई चीज अगर कोई पर्सन ड्रग्स ले रहा है या कोई और चीज ले रहा है और वो होश में नहीं है, उसको बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन। अल्कोहल, जो हस्बैंड है वो अल्कोहल ले रहा है या ड्रग्स ले रहा है, तो वो टाइम पे वो अपने होश में ही नहीं है, तो वो टाइम पे वो क्या करता है, अपनी बीवी को मारता है, फिजिकली उसको असॉल्ट करता है, एंड समटाइम देयर आर केसेस ऑफ द मैरिटल रेप आल्सो। Okay, now there is a over exposure to the dark media. Violence may be due to the over exposure of the dark media program, especially violence against women related films and serials. Movies भी है जहाँ पे women's के साथ गलत दिखाया जाता है। मीडिया भी आजकल जो है women's को expose करती है, and especially अगर आप advertisement देखो, okay, एडवर्टाइजमेंट पे यू सी एवरी एडवर्टाइजमेंट में आपको विमेन दिखेगी। अगर वो विमेन रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है तो भी आपको विमेन दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी द शेविंग क्रीम का एड, शेविंग क्रीम के एड में भी आपको विमेन्स दिख रही है। दैट मीन्स कि जहाँ पे विमेन्स की जरूरत नहीं है, टेंटो वहाँ पे फीमेल को लिया गया है। ओके, दैट मीन्स कि मीडिया ने भी जो है, डेफिनेटली मीडिया पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है, बट मीडिया का एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा है। Then there is a retaliation action. Violence may be to retaliation action. For instance, a male may be falsely implicated by the female in the certain crime, including rape. Such a person may develop hatred for the females. कभी कभी ऐसा भी होता है किसी फीमेल ने किसी मेल के साथ कुछ गलत किया, ओके, सो वो जो है पूरी फीमेल जो है, एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी पूरी फीमेल से वो नफरत करने लग जाता है वो पर्टिकुलर मेल। ओके, दिस आर द ऑल द कॉजेज जो विमेन्स के ऊपर होते हैं। जस्ट गो थ्रू ऑल द कॉजेज। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज। ओके, बिकॉज विमेन्स के साथ ये सारी चीजें होती है, तो विमेन्स के बॉडी पे फिजिकली मेंटली हेल्थ पे क्या असर होता है, लेट्स सी। मेंटल इफेक्ट क्या होता है? द विक्टिम में बी मेंटली इफेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द डिग्री ऑफ वायलेंस। फॉर इंस्टेंस, इन द केस ऑफ abduction and the rape, the effect may be severe and lifelong. It would be difficult to get over the mental trauma on account of the violence. That means कि अगर कोई लेडी है जिसके साथ रेप हो गया है,
तो उसके लिए वो लाइफ लॉन्ग है, वो उसको भूल नहीं सकती है। ओके, दैट मीन्स वो कभी कभी ट्रॉमा में चली जाती है, कभी कभी वो सुसाइड कमिट कर लेती है, कभी कभी वो पागल हो जाती है। दैट मीन्स के और it is very difficult for that female to cope up with that situation. Physical effect, the victim may be affected physically as well. This is true in the case of wife beating or physically assault. That means कि physically भी उसको torture किया जाता है, wife को मारा जाता है या उसको एक रूम में बंद कर दिया जाता है, तो ये physically भी उसकी बॉडी पे जो है असर होता है. Effect on the health of the victim will be badly affected. The victim may be not take a proper food or even denied of food. ओके कभी कभी ऐसा होता है कि उसके साथ अगर उसका हस्बैंड ने उसके साथ मिसबिहेव किया या उसको बैड वर्ड्स दिया, तो वो कभी कभी फूड नहीं लेती है, गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से उसके बॉडी के ऊपर जो है वो होता है. क्योंकि आप सी अगर इफ यू डोंट टेक द प्रॉपर फूड तो फिर इंडाइजेशन होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी और भी प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी है, देखो हेल्थ इशू ट्यूबरक्लोसिस, जिसको नॉर्मली हम लोग टीबी बोलते हैं. बहुत सारी विमेन्स ओके हेल्थ पे वो भी इफेक्ट पड़ता है. सोशल इफेक्ट ऑन द विक्टिम, द विक्टिम में आल्सो इफेक्टेड सोशली एज वेल. फॉर एग्जांपल आपने सोसाइटी में सुना होगा कि जब जो रेप विक्टिम होती है, जो लड़की के साथ रेप होता है, सोसाइटी फिर उसको अच्छी नजर से नहीं देखती है. सोसाइटी को लगता है कि हाँ ये लड़की की गलती होगी, लड़की ने कुछ की होगी. आपने मीडियाज में ट्रायल में बहुत सारी चीजें देखी होगी और अवेयर ऑफ ऑल दिस. इफेक्ट ऑन द फैमिली मेंबर्स ऑफ द विक्टिम, जो है अगर किसी लड़की के साथ होता है वायलेंस, तो जो है उसकी फैमिली भी उससे इफेक्ट होती है, नॉट ओनली दैट गर्ल बट फैमिली आल्सो. ओके, नेक्स्ट इफेक्ट ऑन द सोसाइटी. Violence against women may have adverse effect on the society. For example, there is several cases where the violence against women such as rape, murder, then there is civil disturbance in this area which can really adversely affect the peaceful atmosphere. See, कभी कभी क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई ऐसा क्राइम हो जाता है, तो फिर वो पर्टिकुलर एरिया में लोग जो है वो वायलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं और चीजें तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जो जहाँ का पीस होता है वो भी खत्म हो जाता है. तो दिस आर द वेरियस इफेक्ट of the violence against women. Okay, we have seen the causes and we have seen the effect. Steps to prevent the violence against women. See, we have seen the various type of violences, like physical violences or domestic violences. So what are the effect and what are the causes of that? Now, what are the steps? अभी ये सब हो चुका है विमेन्स के साथ या हो रहा है, तो क्या स्टेप्स लेना है? ओके, क्या स्टेप्स लेना है ताकि ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाए. लेट्स सी. The following initiatives have taken to prevent the violence against women. All these are the steps जो है वो women ने लिया है. The government should effectively enforce laws that protect the women from the discrimination and the violences, including the verbal abuse, rape, etc. गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स के जैसे डिनाइल होता है ना, मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो क्राइम कर दिया. दैट मीन्स कि सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते हो आप लोग. ओके, देन अगर किसी लेडी को वर्बली भी अगर कुछ गंदा बोला जा रहा है या उसको अब्यूज किया जा रहा है या इफ द विमेन इज सब्जेक्टेड टू रेप, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए हैं. ओके, जिसके लिए जो है दिल्ली का जो केस है निर्भया केस, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट केस जो दिल्ली में हुआ था केस. Yes, ma'am. सो गवर्नमेंट ने वो टाइम पे ओके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए थे जिसमें जल्दी से जल्दी हो. ओके, जो डिसीजन आए वो जल्दी से आ जाए. ओके, देन दैट विल गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड women with access to the legal representative and the opportunity to pursue the justice against the perpetrators of the violence to the formal legal system. सी हमारी कंट्री का लीगल सिस्टम आपको पता है कि हमारी कंट्रीज में जो है वो कोर्ट में जो जाते हैं लोग, लेकिन कोर्ट में बहुत टाइम लग जाता है. ओके, बिकॉज हमारी कंट्री में पॉपुलेशन हमारी कंट्री की बहुत ज्यादा है, कोर्ट केसेस बहुत पेंडिंग है. सो लोगों को डेट मिलती है. डेट में सनी देओल का एक फेमस डायलॉग पता है आपको, तारीख पे तारीख. रिमेम्बर दैट मींस कि हमारी कोर्ट में एक बार अगर पोस्ट केस चला गया तो वो कभी कभी 5 to 10 years भी चला जाता है. तो ऐसे टाइम पे इट इज वेरी डिफिकल्ट कि विमेन्स जो है वो केस लड़े. तो ऐसे टाइम पे और जो लॉयर्स की फीस होती है दैट इज आल्सो टू हाई, और कभी कभी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है. ओके, दैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसी फैसिलिटीज देना चाहिए विमेन्स को जिसकी वजह से वो सारे जो है जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर या ऐसा कुछ जिसकी वजह से वो लीगल सिस्टम से कोई उसको फंसाए नहीं. नेक्स्ट, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड ओपन अपॉर्चुनिटीज टू द वुमेन हैज टू मैन विद रिगार्ड टू द एम्प्लॉयमेंट. दैट मींस कि एम्प्लॉयमेंट पे देयर आर सम बहुत सारी ऐसी जॉब है दैट इज रिजर्व ओनली फॉर मेल, जहाँ पे फीमेल्स नहीं जाती थी. तो अभी इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए. पेमेंट में भी देखो डिफरेंस होता था, मेल की वेजेस और सैलरीज अलग है, फीमेल्स की अलग है. ओके, इफ यू सी मेनी इंडस्ट्रीज, इफ यू द
फिल्म इंडस्ट्री भी आप देखो, टीवी इंडस्ट्री भी आप देखो, वहाँ पे भी मेल का पेमेंट अलग है, फीमेल का पेमेंट अलग है। बहुत सारी लर्निंग स्किल्स भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर टेक्निकल कोई इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे अगर फीमेल जाती है तो उसको बोला जाता है कि ये तो मेल की जगह है। इंजीनियरिंग, कुछ ऐसे फील्ड है जो ऐसा लगता है मेल के लिए, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। The judiciary should impose strict punishment in the cases of the women violence which may act as a great deterrent to the perpetrators. That means कि अगर कोई किसी विमेन के साथ गलत कर रहा है तो उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि बाकी के लोगों के लिए सीख है कि वो विमेन्स के साथ कोई भी गलत बिहेव ना करे। ओके, the parent and the education institute should encourage the girl to pursue the secondary and the higher secondary education. से sometimes क्या होता है कि पेरेंट्स जो स्कूल तक ही पढ़ाते हैं गर्ल चाइल्ड को, और अगर कॉलेज भी पढ़ाते हैं तो 11 एंड 12 स्टैंडर्ड, हायर पोजीशन दैट इज डिग्री कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल डिग्रीज, ये सब विमेन्स को नहीं दी जाती है। तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इट इज अ ड्यूटी ऑफ द टीचर्स एंड ऑल द कि वो परस्यू करे। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर कोई अच्छा पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी अभी आप लोग अभी आए बैच में, अभी हम लोग देखेंगे कि हाँ आप लोग अच्छा कर सकते हैं, तो विल सजेस्ट यू कि आप MBA करो। ओके, ताकि हम आपको एनकरेज करें ताकि आप लाइफ में और अच्छा करें। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, हम एजुकेटर्स जो है हमारी भी ये ड्यूटी है कि हम आपको एनकरेज करें। प्लस एनकरेजमेंट बाय पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपके पेरेंट्स ही है जो आपकी फीस देंगे, जो आपको एनकरेज करेंगे। द फैमिली मेंबर मस्ट एनकरेज इट्स विमेन मेंबर्स फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑल्सो, एज आई टोल्ड यू कि फाइनेंशियली जो है अभी जो है आप लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। ओके, ऑल ऑफ यू, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज ऑल्सो, मे बी आप लोगों में से कुछ लोग जॉब भी करते होंगे। ओके, बट मेजोरिटी जो है वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ द पेरेंट के वो एनकरेज करे। द वुमेन शुड एम्पावर देमसेल्व्स बाय बी अवेयर ऑफ द, वुमेन्स की भी ये ड्यूटी है कि वो अपनी राइट्स के बारे में जाने कि उनके पास क्या क्या राइट्स है। ओके, जैसे आप लोगों ने पढ़े ना राइट्स, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर के राइट्स पढ़े ना आपने? यस स्टूडेंट, यस मैम। तो आपको पता है ना, राइट टू चूज, राइट टू हेल्थ, वो सब राइट्स पढ़े हैं ना आपने। वैसे विमेन्स को भी पता होना चाहिए कि एज अ विमेन के उनके क्या क्या राइट्स हैं। ओके, द विमेन मस्ट सीक हेल्प ऑफ द विमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड पुलिस इफ दे एक्सपीरियंस एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस। ओके, विमेन्स को अगर लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो they can go to the police also, women organization also. The women may take up the self defense courses for protecting themselves. अभी बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स है, नेशनल स्कूल्स में कराटे, स्विमिंग, ऑल दिस, एंड बहुत सारे डिफेंस लेवल पे, पर्सनल लेवल पे भी होते हैं जहाँ पे आप ट्रेनिंग ले सकते हो एंड दिखाया जाता है कि सेल्फ डिफेंस किस तरह से करना है अगर किसी स्ट्रेंजर ने अटैक किया था। तो women should be educated themselves on the issue discussion forum. women's को आगे बढ़ना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। ओके, the social organizations increase awareness to stop violence. जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी NGOs है, जो भी विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये सारी चीजें हाईलाइट करना चाहिए कि किस तरह से विमेन्स के साथ वायलेंसेस होते हैं, विमेन किस तरह से करती है, और जो विमेन्स है जो आगे नहीं बढ़ पा रही है उनको एनकरेज करना चाहिए। द मीडिया शुड पोर्ट्रे विमेन इन अ मीनिंगफुल रोल एंड डिमीन नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बोला, मीडिया, हमारे कंट्री में मीडिया का पावर बहुत है। ओके, मीडिया जो है, और मीडिया ट्रायल भी चलती है लोगों की, अगर कोर्ट ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन मीडिया पहले से लोगों को बोलने लग जाता है। ओके, रिसेंट जो केस चल रहा है इस वक्त आर्यन खान का, आप देख रहे होंगे कि मीडिया कितना बोल रहा है। ये स्टूडेंट, आई होप Yes, आप लोग ma'am. चले। दैट मीन्स कि हमारी तो कंट्री में जो मीडिया है वो विमेन को पॉजिटिव रोल में दिखाना चाहिए। ओके, विमेन का पॉजिटिव रोल बताना चाहिए। सोशल मीडिया में भी, जो सोशल मीडिया है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप है, ट्विटर है एंड फेसबुक है, हाँ इंस्टाग्राम है, वहां पे भी विमेन्स को अच्छी तरह से, वहां पे विमेन्स कभी कभी विमेन्स के लिए बैड वर्ड्स वहां पे भी कमेंट्स में भी आते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। द कंपनी शुड सेट अप द विमेन ग्रीवेंस सेल। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, वो भी एजुकेशन में जहाँ पे विमेन्स काम कर रही हो वहां पे ग्रीवेंस सेल होना चाहिए कि अगर किसी कलीग ने या किसी बॉस ने उसके साथ कुछ गलत किया तो वो विमेन सेल में जाके कंप्लेंट लॉन्च कर सके। The corporate policy should be women friendly, such as the maternity benefit, flexible working and career development. से क्या होता है कि women अपना 100% देने के बाद भी, suppose if she get married, if she get pregnant, अगर उसको child born हो जाता है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट देना चाहिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, जब फीमेल जो है, मैम अटेंडेंस लिंक। यस यस बेटा, वेट, just let me complete this point. Okay, मैटरनिटी लीव पे जाती है तो उसको डिसकंटिन्यू कर देता है। ओके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्लेक्सिबल वर्किंग, वुमेन्स के लिए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर होना चाहिए, बिकॉज उसको अपना घर भी देखना है एंड देयर शुड बी चांसेस फॉर द करियर डेवलपमेंट। ओके, ओके स्टूडेंट, आई होप दिस वन इज क्लियर। यस मैम। Yes, ma'am.